السلام علیکم، میں ہوں عبیداللہ صدیق۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک فوج کے جوانوں نے جان کا نذرانہ دے کر بنو کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ دہشت گرد بنو کینٹ پر حملہ آور ہوئے تو سیکیورٹی فورسز نے دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلا۔ 10 حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حملہ پسپا ہوا تو دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی، جس میں 8 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے افسر، جوانوں اور اہل خانہ کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے دہشت گرد حملہ حافظ گل بہادر گروپ کی جانب سے کیا گیا، جو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ افغان حکومت مؤثر کارروائی کر کے دہشت گردوں کو اپنی زمین استعمال کرنے سے روکے۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغانستان سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ ڈی آئی خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 2 بچوں سمیت 5 شہری شہید۔ دہشت گردوں سے لڑائی میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، عوام اور رشتہ داروں کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے بچوں، خواتین اور شہریوں کے قتل میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بنو میں جوانوں کی بروقت کارروائی نے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ بزدلانہ کارروائیوں سے دہشت گرد قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء پوری قوم کا فخر ہیں اور ہم سب شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ڈی آئی خان کے ہیلتھ سینٹر پر حملے کی مذمت۔ کہا جوانوں اور لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت معصوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ کہا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ کارروائی ہے۔ مئی کو جو کچھ ہوا ڈائریکٹ پاکستان کی اساس پہ حملہ تھا اور پاکستان کے وجود پہ حملہ تھا۔ آج بھی روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو بھی پناہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یا کسی اور کے اقتدار کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے وجود کی بات ہے۔ 9 مئی کو پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا۔ آج بھی روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھی پناہ دیتے ہیں۔ خواجہ آصف کا بڑا الزام۔ وزیر دفاع نے کہا بانی PTI اور سابق اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ پابندی سے متعلق سوال پر کہا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے، تمام پارٹیوں کی مشاورت اور منشا سے فیصلہ کریں گے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں پابندی کے لیے ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، کچا چٹھا سامنے رکھ کر پوچھیں گے کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ ایک شخص اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ کو شرم آنے لگی۔ وقت آ گیا کہ نواز شریف ملک کے خلاف سازشی پہلو بے نقاب کر دیں۔ لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھیں جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ پہلے سے مائنڈ میں تھا یا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ابھی فیصلہ ہوا نہیں، آپ پہلے پوچھ رہے ہیں یار۔
पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। मामले को पहले पार्टी क़यादत देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बड़ा बयान, कहा कानून और आइन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पास सबूत हैं। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने फंड दिए। इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। बोले इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो दिन दूर नहीं जब महंगाई नीचे आएगी और हम इस भंवर से निकलेंगे। The reports and the statements made by the government. Our understanding, this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक़ हुकूमती बयानात से लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। ARY न्यूज़ के सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। कंसल्ट नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। जब वो सियासी पार्टी बन के चले इस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। अफसोस की बात है पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एड हॉक जज बनने से मौजरत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को खत में लिखा फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। ज़राए का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एड हॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा जिसमें एड हॉक जजेस के मुजव्वज़ा नामों पर गौर किया जाएगा। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं छुट्टियों के दौरान एक साथ 4 जजों की एडहॉक तकर्री गैर ज़रूरी है। फैसले से केसों का बोझ कम नहीं बल्कि समझौता होगा। 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। फवाद चौधरी का कहना है कुछ लोग मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं, फैसलों पर मोहर लगाने के लिए मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं। निगरान हुकूमत का हिस्सा रहने वाले रिटायर्ड जजों को तैनात करने की कोशिश हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का कहना है नए IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला ज़खायर ज़रूरत से बहुत कम है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल बढ़े जा रहा है, बहुत मुश्किलात हो रही है, इस वक्त नहीं होता पूरा। इतने कमाते नहीं, इतना पेट्रोल डालते हैं। तनख्वाह इतनी है नहीं जो हम इतना होल्ड कर सकें पेट्रोल। बहुत परेशान है इस हुकूमत से भी। बिजली इतनी महंगी कर दी है, आटा आवाम को नहीं मिल रहा, तेल इन्होंने महंगा कर दिया है और भी महंगाई होगी। किस चीज में ये दे रहे हैं आवाम को रिलीफ? आवाम को तो गवर्नमेंट ने तबाह करके रख दिया। 50 का वहाँ से डलवाया यहाँ तक पहुँचे, 50 का यहाँ से डलवाया घर तक पहुँचेंगे, बस इससे कोई गुजारा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे इजाफा। महंगाई के रसे आवाम फट पड़े, कहते हैं हम पर बम गिरा दिया। हुकूमत होश के नाखुन ले, पेट्रोल डलवाएं, बिजली और गैस के बिल भरें, मकान के किराए दें या बच्चों को खिलाएं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं दिन में जितना कमाते नहीं उतना पेट्रोल में चला जाता है। महंगे पेट्रोल ने शौक भी छीन लिया।
कराची में हैवी बाइक का शौकीन राइडर भी परेशान, कहता है अब तो महीने में 1-2 बार ही ये बाइक सड़क पर निकालता हूं। बारह घंटे की लाइट जाती है, यहाँ बड़ी मुसीबत होती है। आधे घंटे से लेकर पौने घंटे के दरमियान ये लाइट आती है। मुर्दा खफन फाड़ के बोलता है, बिल जिगर फाड़ के बोलता है, और ऐसा जिगर फाड़ता है कि बच्चों की स्कूल की फीसें भी ले जाता है, बच्चों की रोटी भी ले जाता है, और बच्चों के सर पे जो साया है ना, जिसको मकान कहते हैं, उसका जो किराया है वो बिल साथ वो भी ले जाता है। कराची में सख्त गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। लियाकताबाद में 10 घंटे के तातुल ने अवाम का पारा हाई कर दिया। एक शहरी बिजली के भारी बिल पर फट पड़ा, कहा बिजली का बिल जिगर फाड़ कर बोलता है, बच्चों की रोटी, स्कूल की फीस और सर से छत ले जाता है। एक शख्स के खिलाफ यहाँ 20 से ज़ायद मुकदमात हैं, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। उसे समझता हूँ कि इंतज़ामिया पूरी तौर पर मुलव्वस है। ये जो माफिया इतना मुनज़्ज़म है, ये बैठता है यहाँ पे असला मजाक लोगों के साथ। कराची में टैंकर माफिया की दीदत दिलेरी, पानी की मेन लाइन तोड़कर वीरान इलाके में तालाब बना लिए। टैंकर भर भर कर शहरियों को फरोख्त किए जाते हैं। मेन लाइन से डिस्ट्रिक्ट के माड़ी और गरबी की आबादियों को पानी की फराहमी मुतासर। वाटर बोर्ड हुक्काम ने बल्दिया टाउन के कट्टू गोट में पानी चोरी की निशानदेही की, पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। टाउन चेयरमैन करीम आसकानी ने मॉस्को पुलिस पर पानी चोर माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। यहाँ शक किया ये ते सुना दिते ने, इन्होंने पता लगा ते आए ने साडे ते पर्चा तुसीं जोर ना कराओ। तिन्ने भरा इन्हां आन के फायरिंग की, हाला ही बाहर उन्होंने मारिया, पहला वेले च मुड़ के अम्मी साडी सब्जी लैन जा रहे, उन्होंने राह च मारिया, ताया डंगर चारन दे बाहर पाई तो उन्होंने भी मारी। नारोवाल में बकरी गुम होने पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। गांव रतिया खुर्द में गुज़श्ता रोज बकरी लापता हो गई, जिसके बाद तनाज़ा इतना शदीद हो गया कि मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे 2 खवातीन और 1 मर्द जाँ बहक हो गया। कातिलों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ओमानी अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में और अस्पतालों के साथ भी राब्ते में। मैं भी हॉस्पिटल्स में गया था, 3-4 हॉस्पिटल्स में। अभी तक जो मैंने इंजर्ड देखे हैं वो रिलेटिवली सेफ हैं। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में वादी कबीर की मस्जिद में फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 30 के करीब पाकिस्तानी शहरी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, सफारत खाने को ज़ख्मियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर को टेलीफोन, पाकिस्तानियों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग ली, हिदायत की कि ओमानी हुक्काम और मस्कत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से राबते में रहें। शहीदों की जसद खाकी जल्द वतन वापसी का बंदोबस्त करें, ज़ेर इलाज ज़ख्मियों का ख्याल रखा जाए। शहर शहर 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस, रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सखर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जुलूस का जायजा लेने पहुंचे। शुरका और मुंतज़मीन से मुलाकात, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध का सखर का दौरा, मेयर हाउस में हलीम और नियाज में शिरकत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश के बाद नैब की टीम अरियाला जेल से रवाना। जेल ज़राए का कहना है नैब टीम ने दोनों से तोशाखाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से 4 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था।
PTI रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के साथ KP हाउस मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर KP हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से राबता किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने एमरजेंसी रूम्स, टेली मेडिसिन सेंटर्स और सेटेलाइट सेंटर के क़याम पर उसूली इत्तेफाक किया। इजलास में महकमा सेहत और निजी तंजीम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के दरमियान मुआहदे का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला की मुताल्लिक़ा हुक्काम को होमवर्क मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। पंजाब में मजीद 500 फील्ड अस्पतालों की सहूलत देंगे। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुंचाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रुकनी सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी ने मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 200 बुनियादी मराकज़ सेहत आइंदा साल तक 24 घंटे फ़ाल होंगे। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार मेहमान ख़ुसूसी। सूबाई वज़ीर ख़ुराक बिलाल यासीन समेत उलमा व मशाइख़ और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कोरंगी, गुलशन हदीद, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में बादल बरस पड़े। शहर में शदीद गर्मी और हब्स की सूरत हाल बरकरार। समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर का दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई खैबर पख्तूनख्वा सिंध के बाज़ इलाकों में आंधी झक्कड़ के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद के हमले में भारतीय फौज के मेजर समेत 5 एहलकार हलाक। हमलावरों और भारतीय फोर्सेज में फायरिंग का तबादला। भारतीय फौज की जिला डोडा में घर घर तलाशी। करीबी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में तलबा ग्रुपों में खूनरेज तसादुम। 5 तलबा जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। एहतजाजी तलबा और वज़ीर आज़म के हामी तलबा विंग में झड़पें। लाठियों से एक दूसरे पर वार। पुलिस भी एहतजाजी तलबा पर टूट पड़ी। ढाका में तलबा तंजीमों की जानिब से मुलाजमतों का कोटा मुअत्तली के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के इनकार के बाद मुजाहिरों में शिद्दत आई। इसराइली फोर्सेस ने गजा में हमले मजीद बढ़ा दिए। 2 रोज़ में 300 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में 5 स्कूल्स पर हमले किए गए जहां हज़ारों अफराद ने पनाह ले रखी थी। 9 माह के दौरान 400 स्कूल्स को निशाना बनाया जा चुका। गुज़श्ता रोज़ गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल पर भी बम बरसाए गए। फजा में खून की बू, जमीन पर कचरे के ढेर। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हर तरफ गलाजत और मलबे के ढेर। फ़लस्तीनियों का ताफुन ज़दा माहौल में दम घुटने लगा। UN एजेंसी यूनरवा का कहना है कि इसराइल की 9 महीने की आग और बारूद की बारिश से गजा खंडरात में तब्दील हो चुका है। 40 मिलियन टन मलबा और कचरा जमा हो चुका है, जिसे हटाने में 15 साल लगेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइली इलाके पर रॉकेट बरसा दिए। 2 दर्जन से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए। कुछ को इसराइली डिफेंस सिस्टम ने फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। कुछ रॉकेट आबादी पर भी गिरे। कई घरों को नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी।
ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا. ٹرمپ نے ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والے دائیں بازو کے سینیٹر جیمز ڈیوڈ کو اپنا نائب نامزد کیا ہے. ملواکی میں کنونشن سینٹر آمد پر شرکاء نے سابق صدر کا پرجوش استقبال کیا. فلوریڈا کے ڈسٹرکٹ جج نے ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات ساتھ لے جانے کے الزام سے بری کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے عدالتی نظام بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے. امریکی سیکرٹ سروس کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے واقعے کا آزاد جائزہ لینے پر اتفاق. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ سیکیورٹی ناکامی تھی. رہنماؤں اور امیدواروں کو سخت گیر رویوں میں کمی لانا ہوگی. شبانہ محمود نے بطور پہلی برطانوی مسلم لارڈ چانسلر حلف اٹھا لیا. پاکستانی نژاد شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا. کہا یہ ذمہ داری استحقاق اور بوجھ دونوں ہیں. عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے.